بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اسکول بیس اسسمنٹ SBA 2025 8ویں کلاس کے اسٹوڈنٹس الرٹ ہو جائیں، آپ لوگوں کا یہ جو پیپر ہے اسلامیات کا پیپر ہے، فائنل ٹرم کا یہ پیپر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں کا یہ جو پیپر ہے یہ 100 مارکس پہ مشتمل ہوگا، جس میں 48 مارکس کی جو آپ لوگوں کو آبجیکٹیو دی جائے گی اور 52 مارکس کا جو ہے حصہ انشائیہ ہوگا۔ اس کو حل کرنے کا جو کل وقت دیا جائے گا ٹوٹل 3 گھنٹے ہوں گے۔ ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ہمبل ریکویسٹ ہے، جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، حصہ اول معروضی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آیت مبارکہ حصہ ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن اے ہے سورہ علم نشرح کی۔ سوال نمبر 2 دشمن پر غلبہ پانے کی دعا کا ترجمہ ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن سی ہے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سوال نمبر 3 ہے عافیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزمرہ زندگی میں دعا پڑھنے کا معمول بنانا ہوگا، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن بی ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرۃ۔ سوال نمبر 4 دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے، اس پر یقین کو کہتے ہیں، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن اے ہے عقیدہ تقدیر۔ سوال نمبر 5 موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی پر یقین سے مراد ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن سی ہے عقیدہ آخرت۔ سوال نمبر 6 آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خشیت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن میں استغفار فرماتے تھے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن سی ہے 70 بار۔ سوال نمبر 7 زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن سی ہے غربت کا۔ سوال نمبر 8 عازمین حج 8 ذو الحج کو احرام باندھ کر حج کی نیت کرتے ہیں، اس دن کو کہتے ہیں، تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن بی ہے یوم الترویہ۔ سوال نمبر 9 5 وقت نماز کی ادائیگی ہمیں عملی زندگی میں عادی بناتی ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن بی ہے وقت کی پابندی کرنے کی۔ سوال نمبر 10 تبلیغ دین کے لیے مؤثر طریقہ ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن اے ہے تدبر کے ذریعے۔ سوال نمبر 11 غزوہ خیبر پیش آیا، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن بی ہے 7 ہجری۔ سوال نمبر 12 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ممتاز کرنے والی خوبی ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن سی ہے بہادری۔ سوال نمبر 13 سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ جب کسی سے ملاقات کریں تو پہل کرنی چاہیے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن اے ہے سلام میں۔ سوال نمبر 14 خوبی جسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن بی ہے حیا۔ سوال نمبر 15 حدیث مبارک کے مطابق سب اہل ایمان آپس میں ہیں، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن سی ہے بھائی بھائی۔ سوال نمبر 16 امت مسلمہ کے درمیان فرقہ واریت اور تعصب کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن سی ہے اتحاد ملی۔ سوال نمبر 17 اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں دوسروں کے متعلق رویہ اختیار کرنا چاہیے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن اے ہے حسن ظن کا۔ سوال نمبر 18 رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے سبق ملتا ہے کہ ہم حرص و طمع سے بچیں اور اختیار کریں، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن بی ہے قناعت یعنی صبر کا۔ سوال نمبر 19 بچپن میں باپ کے سایہ سے محروم بچہ کہلاتا ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن اے ہے یتیم۔ سوال نمبر 20 معاشرے کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ لین دین کے معاملات ہوں، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن اے ہے شفاف۔ سوال نمبر 21 ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ احادیث مبارکہ کی تعداد ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن اے ہے 7۔ سوال نمبر 22 آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے وقت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تھی، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن بی ہے 20 سال۔
सवाल नंबर 23, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो साहबजादे हैं, तो इनका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाह वजह के। सवाल नंबर 24, अस्साबिकून अल अव्वलून से मुराद वो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है आगाज़ इस्लाम में। सवाल नंबर 25, इस्लाम कबूल करने से कबल हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़हब था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है मजूसियत। सवाल नंबर 26, हज़रत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह के खतूत का मजमुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है मकतूबात इमाम रब्बानी। सवाल नंबर 27, कुरान मजीद में कामयाबी का ऐलान हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है नफ्स का तज़किया करने वालों के लिए। सवाल नंबर 28, हमें हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल्फाजुल कब्बीर से मालूमात मिलती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है असूल तफसीर की। सवाल नंबर 29, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का महल को छोड़कर झोंपड़ी में रहना हमें दर्स देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है सादगी का। सवाल नंबर 30, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के तर्ज अमल के मुताबिक मुसलमान हुक्मरान को गैर मुस्लिमों से सलूक रखना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है इस्लामी तालीमात के मुताबिक। सवाल नंबर 31, उम्मत मुसलमा की फजीलत को मशरूत किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 32, किसी बात पर यकीन करने से पहले ज़रूरी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है कि उसकी तहकीक कर लें। तो डियर स्टूडेंट, ये था हिस्सा मारूज़ी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट, हिस्सा दोम है इंशाइया सवालात। सवाल नंबर 33 का पहला जुज़ है हज का लुग़वी मानी क्या है, तो इसका आंसर नोट कर लें। हज का लुग़वी मानी है कसद करना या इरादा करना। सवाल नंबर 33 का दूसरा जुज़ है हज की अहमियत पर 4 निकात लिखें, तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। नंबर 1, हज से मुसलमानों में भाईचारा पैदा होता है। नंबर 2, हज से मुसलमानों में इत्तफाक पैदा होता है। नंबर 3, हज से अमीर और गरीब का फ़र्क मिट जाता है। नंबर 4, हज से इत्तेहाद मिली का इजहार होता है। सवाल नंबर 33 का तीसरा जुज़ है हज के कोई से 4 अरकान के नाम लिखें, तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। हज के अरकान ये हैं, नंबर 1 एहराम बांधना, नंबर 2 वकूफ़ अरफा, नंबर 3 जमरात को कनकरियाँ मारना, नंबर 4 हल्क या कसर करवाना, नंबर 5 रात मिना में गुजारना। सवाल नंबर 34 का पहला जुज़ है नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बादशाहों को खतूत लिखे उनमें से 2 के नाम लिखें, तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। नंबर 1 नजाशी, नंबर 2 शाही हबशा, नंबर 3 कैसर व कुसरा, नंबर 4 खुसरो परवेज़। तो इनमें से जो है आप लोगों ने कोई से 2 नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से हमें क्या दर्स मिलता है, तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से हमें ये दर्स मिलता है कि हमें अपनी बिसात की हद तक इस्लाम के फ़रोग़ और नशर इशाअत की कोशिश करनी चाहिए। हिकमत व तदब्बुर से काम लेना चाहिए, उम्दा कलाम करना चाहिए, खैर ख्वाही के जज्बात होने चाहिए। सवाल नंबर 34 का आखिरी जुज़ है दावत व तबलीग की अहमियत पर एक आयत मुबारका का तर्जमा लिखें, तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। बुलाइए अपने रब के रास्ता की तरफ हिकमत के साथ और उम्दा नसीहत के साथ, और उनसे इस तरीक़ा से बहस कीजिए जो बेहतरीन हो। सवाल नंबर 35 का पहला जुज़ है हिर्स व तमा का लफ्ज़ी मानी लिखें, तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। हिर्स का मानी है कि इंसान अपना हिस्सा हासिल कर लेने के बावजूद दूसरे के हिस्से का लालच रखे। सवाल नंबर 35 का दूसरा जुज़ है
कनात से मुताल्लिक नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का कोई एक फरमान तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान है, फलाह पा गया वो शख्स जो इस्लाम लाया और उसे मुनासिब रिस्क दिया गया और जो अल्लाह ने उसे अता किया उस पर उसे कनात दी गई। सवाल नंबर 35 का तीसरा जुज़ है, असर हाजिर में हिर्स व तमा के मुआशरती ज़िंदगी पर क्या असरात हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। हिर्स व तमा एक ऐसी अखलाकी बीमारी है जो मुआशरे को फसाद से भर देती है। हरीस शख्स अल्लाह की इबादत से गाफिल हो जाता है। लालची शख्स हमेशा हरीस रहता है। वो चोरी, सूदखोरी, खयानत और रिश्वत जैसी बीमारियों का मुर्तकिब होता है। इनकी बदौलत तरह तरह के जराइम परवान चढ़ते हैं जो मुआशरे की तबाही और बर्बादी का सबब बनते हैं। सवाल नंबर 36 का पहला जुज़ है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का नाम, कुनियत और लक़ब तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम मोहम्मद, कुनियत अबू हामिद और लक़ब हिज्जतुल इस्लाम है। सवाल नंबर 36 का दूसरा जुज़ है, हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों की सियासी हैसियत को मजबूत बनाने और समाजी इस्लाह के लिए क्या इक़दामात किए। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की कोशिश थी कि एक तरफ मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा हो और वो फिर से एक मजबूत सल्तनत कायम करें और दूसरी तरफ अपनी अखलाकी ख़राबियों को दूर करें और गैर इस्लामी तरीक़ों और रसूम व रिवाज को छोड़कर दौर अव्वल के मुसलमानों जैसी ज़िंदगी इख्तियार कर लें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के सियासी हैसियत को मजबूत बनाने के लिए बादशाहों और उमरा से ख़त व किताबत भी की। चुनाचे अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मशहूर हमला शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के ख़त पर ही किया, जिसमें उसने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मरहटों को शिकस्त दी थी। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने समाजी इस्लाह का भी काम किया। बेवा औरतों की शादी बुरी समझी जाने लगी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस रस्म की मुखालफत की। इसी तरह खुशी व गम के मौका पर फजूल खर्ची से रोका। सवाल नंबर 36 का आखिरी जुज़ है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ अहया उलूमुद्दीन की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगियों में क्या रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़ में सबसे ज़्यादा शोहरत पाने वाली किताब अहया उलूमुद्दीन है, जो तसव्वुफ़ व अखलाक पर लिखी गई कुतुब में बुनियाद का दर्जा रखती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब में इल्म, अक़ीदा, तहरत व पाकीज़गी, अरकान इस्लाम, दुआ के आदाब, खाने पीने के आदाब और दीगर आदाब ज़िंदगी बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाई हैं। आपकी इस तसनीफ़ में दर्ज तालीमात पर अमल करके मुआशरा जन्नत नज़ीर बन सकता है और हर तरफ अमन व अमान और खलूस मोहब्बत का दौर दौरा हो। सवाल नंबर 37 का पहला जुज़ है, अबलाग का मानी व मफ़हूम बयान करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। अबलाग का मानी है पहुँचाना, जबकि इस्तिलाह में अपने ख़यालात दूसरों तक पहुँचाने का अमल अबलाग कहलाता है। सवाल नंबर 37 का दूसरा जुज़ है, ज़राए अबलाग क्या हैं, दो मिसालें दें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। ज़राए अबलाग से मुराद वो तमाम ज़राई हैं जिनकी मदद से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर टेलीविज़न, रेडियो और मोबाइल वगैरह। जी तो डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 37 का आखिरी जुज़ है, ज़राए अबलाग का दुरुस्त इस्तेमाल हमारे मुआशरे में कौन कौन सी तब्दीलियाँ ला सकता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। ज़राए अबलाग का दुरुस्त इस्तेमाल हमारे मुआशरे में कई मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकता है, जिनमें से चंद दर्ज झैल हैं। ज़राए अबलाग की मदद से आवाम को मुख्तलिफ मौज़ूआत जैसे सेहत, तालीम, माहौलियात और शहरी हकूक़ के बारे में आगाही फ़राहम की जा सकती है। ऑनलाइन तालीमी प्लेटफॉर्म्स और मालूमात की रसाई से तलबा और असातिज़ा को जदीद मवाद तक आसानी से रसाई हासिल होती है। ज़राए अबलाग के ज़रिए मुआशरती हम आहंगी और इत्तेहाद मिली को फ़रोग़ दिया जा सकता है, क्योंकि ये एक ही पैगाम को बहुत बड़ी तादाद में लोगों तक पहुंचा सकता है।
میڈیا کے ذریعے مختلف معاشرتی مسائل جیسے جرائم اور کرپشن کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، جس سے ان کی روک تھام اور اصلاحات میں مدد ملتی ہے۔ ذرائع ابلاغ ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے اور نئی نسل کو اپنی ثقافت اور روایات سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوامی مسائل پر کھل کر بحث اور مکالمہ کیا جا سکتا ہے، جس سے رائے عامہ کی تشکیل میں مدد ملتی ہے۔ ان مثبت پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرائع ابلاغ کا مؤثر اور درست استعمال ہمارے معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آپ لوگوں کا اسلامیات کا پیپر۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے تمام پوائنٹس جو ہے کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو ایک لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کی نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات۔ اپنا رکھے ڈھیر سارا خیال۔ فی امان اللہ۔